तो चलिए आज का इवनिंग स्टार्ट करते हैं and good evening to everyone and a very warm welcome to Mo TV. So today of course I could see the interest being generated and this is something I know that all of you look forward to. So let me just begin with today's program. So peace and calmness are a very important part of our lives. And yoga and breathing are the two things which provide us with that. Yoga does not just change the way we see things, it heals and it transforms the person who is doing it. Yoga, in fact, is a great practice for both the body and the mind, and it offers peace and mindfulness to its lovers, and it helps them get through the daily stress. Yoga takes you into the present moment, the only place where life exists, and a good breath gives good peace. The quality of our breathing expresses our inner feelings, and yoga molds them in a very relaxing way. So today, Mo TV, in association with Jiva Ayurveda, brings you a relaxing session on healing with yoga and breathing practices. And today we have with us Acharya Ravi Shankar from Jiva Ayurveda. So Acharya Ravi Shankar ji, a very warm welcome to you. Thank you so much. So just to tell you all a little bit about Acharya Ravi Shankar Bhatt, he has done his MSc in yoga from Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samastha University, Bangalore. He has vast experience in treating patients with yoga therapy for various diseases like obesity, back problems, diabetes, hypertension, Parkinson's disease, respiratory disorders, gastrointestinal disorders, psychosomatic ailments. His specialization includes stress management, meditation, corporate yoga, chair yoga, and yoga for children. He has also taught to thousands of students and has conducted many workshops across the globe. He is involved in yoga research, social outreach, and educational programs and environmental initiatives. So with that, once again, a very warm to you, Acharya ji, and really looking forward to today's session with you because of course, आप जो भी ये सब बोल रहे हैं जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशंस है और ये आई थिंक हम सबकी लाइफ ड्रिफ्ट में है आजकल, ये हर चारों तरफ से हमें वो करती रहती हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे एम्स है, चाहे कुछ है या एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं. So anything which helps us to gain peace and calmness is something that we look forward to. So over to you, Acharya ji. Hariom ji, thank you so much for such a warm welcome. So great. So before we enter into the session, we would like to start with a few rounds of slow and deep breathing followed by 3 Omkara chanting. So put your palms in Chin Mudra like this. Remaining 3 fingers should be all together. Place the wrist joints on the knees, back straight, and shoulders relaxed. Eyes gently closed, and slowly breathe in. धीरे-धीरे आराम से श्वास लेंगे और लंग्स को पूरी तरह से एक्सपैंड होने देंगे और थोड़ा पेट भी बाहर की ओर आएगा जब श्वास अंदर भरेंगे और श्वास खाली करते हुए धीरे से लंग्स को ढीला छोड़ेंगे. ध्यान पूरी तरह से श्वास पर होगा. आंखें सहजता से बंद, कंधे ढीले, चेहरे पर मुस्कान और लंबी गहरी श्वास. Slow, long and deep breath and a beautiful smile on the face. Shoulders relaxed, eyes gently closed. And slowly with a few rounds of deep inhalation
Now become aware of your heartbeat. Concentrate on your heart. ध्यान हृदय की धड़कन पर केंद्रित करें और लंबी गहरी श्वास के साथ हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सब लोग साथ साथ श्वास भरें। बहुत धीरे से अपनी आंखें पलके झपकाते हुए खोलें, चेहरे पर मुस्कान के साथ। हरिओम। Once again, very good evening to all of you and welcome to this session. तो आज हम कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस सीखेंगे जो बहुत जरूरी हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए, है ना। स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आप नियमित करें और डेली करें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजाय आप 1 घंटे एक दिन कर लें और फिर 4 दिन नहीं करें, फिर कुछ समय बाद करें, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आप 15-20 मिनट ही कर रहे हैं किंतु डेली कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, तो उसका लाभ आपको मिलेगा और आप स्वस्थ रह सकते। ठीक है। तो इसमें हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम सीखेंगे आज के सेशन में और कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस सीखेंगे। एक ब्रीदिंग टेक्निक है, उसका नाम है पूर्ण यौगिक प्राणायाम, फुल यौगिक ब्रीदिंग, और उसके पहले 3 स्टेप्स हैं, उसे कहते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग, विभागीय प्राणायाम। 3 सेक्शंस में अलग अलग होता है, एब्डोमिनल, थोरैसिक और क्लेविकुलर। तो वो हम अभी सीखेंगे। उससे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो शरीर के लगभग सारे अंगों के लिए एक बार हम देखते हैं कि उसे कैसे करना है और कैसे वो स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक, सर्वाइकल पेन बहुत सारे लोगों को होता है ना। कंधों में अकड़न दर्द लगभग लोगों को होता है, फ्रोजन शोल्डर, है ना। फिर ज्वाइंट, कमर में दर्द, घुटने में, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम इन पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको चेयर पर इस तरह से बैठ करके दोनों पैरों को आपस में पैरेलल रखना है। कितनी दूरी रखनी है पैरों में? तो जितना चौड़ा कंधा है ना, उतनी ही चौड़ाई, उतनी ही गैप आपको दोनों पैरों के बीच में रखना है। द गैप शुड बी एज सिमिलर एज टू योर विड्थ ऑफ द शोल्डर, फाइन। और पाम दोनों जो हथेलियां हैं घुटने पर रहेंगे और पैर सीधे होंगे, आगे या ऐसा पीछे नहीं, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पर। और बैक को सीधा रखेंगे और आंखों को खुला रखेंगे, आंखें खुली रहेंगी और धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप इसे राउंड राउंड रोटेट करेंगे, लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी और आंखें खुली रहेंगी। खुली आंखों के साथ करना है, क्यों? ताकि चक्कर नहीं आए, और बहुत धीरे धीरे मूव करना है। आप जितना धीरे मूव करेंगे उतना बढ़िया है। तेजी से 20 राउंड करने के बजाय आप धीरे धीरे 5 राउंड करें, ये लाभ देगा, ज्यादा लाभ देगा इनफैक्ट। रेगुलर ब्रीदिंग से इसमें ना श्वास ऐसा इनहेल एक्सहेल का स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है और धीरे धीरे घुमाते रहना है। डिनर के 5-7 राउंड करना है, प्रतिदिन करना है। बस केवल ध्यान ये रहे कि आप जिस स्थिति में बैठे हैं, कमर गर्दन बिल्कुल, बेसिकली कमर बिल्कुल सीधी हो, स्पाइन सीधा हो और आप आराम आराम से उसे घुमा रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ।
खुली आंखों के साथ, और कंधे ऊपर भाग जाते हैं तो उनको नीचे रखना है, डाउन रखना है, अच्छा। और मुस्कुराना अलाउड है, आप मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। थोड़ी देर शांति भी बहुत जरूरी होती है, आप बिल्कुल शांत होकर करके देखें बिना मेरे किसी आवाज की। और फिर अब उल्टा करेंगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। जब शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगे आप, तो बाकी सारी जो समस्याएं हैं जीवन में, जो आमतौर पर हर एक इंसान के जीवन में होती हैं, हमारे आपके सबके जीवन में कुछ न कुछ तो होती ही हैं समस्याएं। लेकिन यदि शरीर स्वस्थ है तो बाकी सारी समस्याएं हल्की दिखती हैं उसके सामने, फिर सब आसानी से सोल्व हो जाता है। लेकिन शरीर ही दुखी है तो फिर मुश्किल है बाकी चीजों को हल करना। ग्रेट, अब सेंटर में आ जाएं। 5 राउंड हमने सीधा किया और 5 उल्टा किया, है ना। और अब सारी उंगलियों को एक साथ मिला लेंगे। अभी अब हम कंधों का करेंगे और इसे कंधों के जोड़ों पर रख लेंगे और दोनों कोहनियों को आपस में सटाएंगे और मुस्कुराते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ इसे ऊपर की ओर उठाएंगे और पूरा यहाँ से एक्सपैंड करेंगे, फैलाएंगे। और अब श्वास खाली करते हुए नीचे ले जाएंगे। थोड़ी देर इसलिए शांत रहा ताकि आपको मेरे श्वास की आवाज समझ में आए और किस तरह से धीरे धीरे, जैसे लोग जब श्वास लेते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा नहीं जोर से नहीं खींचना है, नाक सट जाएगा तो आपस में ये नॉस्ट्रल्स तो सट गए तो फिर श्वास तो जाएगा ही नहीं अंदर, इसलिए बहुत धीरे धीरे श्वास लेना है, आराम आराम। अच्छा, ये जो कर रहे हैं शोल्डर रोटेशन, क्या इससे केवल कंधा ही ठीक होगा? नहीं, ये देखने में सूक्ष्म है, छोटा है ना, लाइक माइक्रो प्रैक्टिस जैसा लगता है, लेकिन इसके मेजर इम्पैक्ट हैं शरीर के ऊपर। अपर बॉडी में 3 मेजर मसल्स हैं, ये सामने वाला है, आप करते रहिए, आपको करते रहना है। और 7 राउंड पूरा होगा तो उल्टा घुमाएंगे। ये जो सामने का ये पूरा मसल्स है, यहाँ से इधर का, ये पेक्टोरियलिस मेजर कहते हैं इसको, नॉर्मल लैंग्वेज में पेक्टोरियल्स कहते हैं, पेक्टोरियल मसल्स। और पीठ का जो मसल है, दोनों ये जो कंधों की हड्डियां हैं, स्कैपुला, उसके बीच का, इसको ट्रेपेजियस कहते हैं। और यहाँ से ये जो कॉलर बोन है, जो ये सिलाई वाला हिस्सा है इसका, ये सीधा वाला लाइन, इसको क्लेविकुलर मसल्स कहते हैं। तो ये तीनों मेजर मसल्स, इनका स्ट्रेंथनिंग होता है। यदि स्टिफ हैं तो इनकी लूजनिंग होगी, है ना। और आपको फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल पेन, अपर बैक पेन, ये सब नहीं होगा। यदि पहले से है तो धीरे 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 उसमें काफी लाभ मिलेगा और आप स्वस्थ होने लगेंगे। ठीक है, शर्त यही है कि आप नियमित रूप से करें इसे। ठीक है, अब उल्टा घुमाएंगे, श्वास भरते हुए पहले पीछे लेकर जाएंगे, ऊपर उठाएंगे। श्वास का क्रम एक जैसा है दोनों ही तरफ से, श्वास छोड़ते हुए धीरे नीचे, यहाँ से ऐसा श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। जब हम आगे से भी इसको घुमा रहे थे तो हम श्वास भरते हुए ऊपर उठा रहे थे, यानी कि ऊपर जाते समय श्वास लेना है और नीचे लाते समय इसे श्वास खाली करना है। तो आराम आराम से घुमाना है। मुस्कुराना अलाउड है, आप मुस्कुराते रहें और धीरे धीरे करते रहें। मुस्कुराने के लिए अलग से कोई इसमें प्रैक्टिस नहीं करना है ना, इसी प्रैक्टिस के साथ साथ मुस्कुराते रहें। उसके लिए अलग से कोई आपको प्रयास नहीं करना है ना, हो जाएगा इसी के साथ। बहुत बढ़िया। 5-7 राउंड आपको सीधा करना है और उतने ही, सपोज आपने 5 किया या 7 किया तो जितना सीधा किया उतना ही उल्टा भी करना बराबर,
है ना। इसी तरह से रिस्ट ज्वाइंट एल्बोज के लिए भी है। रिस्ट ज्वाइंट के लिए बहुत सिंपल है, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। मतलब ऐसे करूं तो आपको दिख जाएगा, ये है ना। तो श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, अपनी तरफ अंदर खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया, आराम आराम से। ये 5-7 राउंड करने के बाद आप रोटेशन कर सकते हैं। मुट्ठी बना लें ऐसे, थंब को अंदर डाल दें और बाकी को 4 उंगलियां को ऊपर से रख लें और इसे गोल गोल घुमाएं, है ना। रिस्ट ज्वाइंट मूव करेगा, है ना, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे, आराम आराम से सांस भरते हुए। ठीक है, आप कर रहे हैं हमारे साथ, आशा करता हूं आप कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद अब एल्बोज के लिए करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। दोनों हथेलियों को सामने की तरफ, ऊपर की तरफ कर लेंगे और पहले श्वास भरेंगे, खाली करते हुए इसे पास लाएंगे और फिर श्वास भरते हुए सीधा करेंगे। ये जो यहाँ वाला पार्ट है इसको नीचे नहीं रखना है, कंधे के बराबर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे इतनी ऊंचाई पर और फिर श्वास भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए अंदर। आप 5-7 बार करेंगे, आपको लगेगा जैसे आपके बाइसेप्स में अच्छा खिंचाव हो रहा है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स में मजबूती आएगी। यदि ये थोड़े ढीले पड़ रहे हो, इनमें थोड़ा स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो स्ट्रेंथ डेवलप होगा। स्टिफनेस ज्यादा है तो वो धीरे धीरे लूसन अप होगा। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे इस तरह से और भरते हुए। बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद जो है हम करेंगे नेक्स्ट, वो है कमर के लिए। तो इससे कमर दर्द में बहुत राहत मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। और साथ साथ यदि आपको अपच की समस्या है, इंडाइजेशन है, डायबिटीज है, इसमें भी हेल्प मिलेगा। क्योंकि जब आप ट्विस्टिंग करते हैं, सपोज यदि मैं लेफ्ट की साइड ट्विस्ट करता हूँ तो ये पूरा एरिया खींचेगा और यहाँ जस्ट नीचे पैनक्रियाज है राइट साइड में और लेफ्ट में लीवर है। तो जब राइट ट्विस्ट करेंगे तो लेफ्ट में स्ट्रेच हो रहा है, तो लीवर को भी एक्सरसाइज मिल रहा है। साथ साथ आंत जो है हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, स्मॉल और लार्ज, उनको भी फायदा मिल रहा है। तो ओवरऑल आपका मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स जो है शरीर का वो दुरुस्त होगा, वो अच्छा होगा। और साथ साथ लोअर बैक का पेन भी रिलीज होगा। लेकिन करना है, रेगुलर का भी होगा ना, करना पड़ेगा आपको। चलिए इसको सीखते हैं, बहुत सिंपल है। पैर वैसे ही पैरेलल रहेंगे, थोड़े डिस्टेंस के साथ। आप बिल्कुल ऐसा सीधा बैठ जाएंगे, एकदम स्ट्रेट। ऐसा झुक के नहीं बैठना है, झुक के बैठेंगे तो कमर दर्द होगा। सीधा बैठेंगे, जितना प्रयास कर सकते हैं, मतलब जितना सीधा हो सकते हैं आप उतना प्रयास करें। ठीक है, और बाजू वाली चेयर है तो अच्छी बात है, नहीं भी तो कोई बात नहीं, आप सोफे पे भी हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन जब सोफे पे बैठे तो एक पोर्शन हिप के नीचे रखना है बेस में और उसके ऊपर बैठना है। ठीक है, ऐसा करने से लोअर बैक पेन यदि बहुत ज्यादा है तो रिड्यूस हो जाएगा, घटेगा। अब इसको करना कैसे है, पहले श्वास भर लें आप और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और ऊपर वाला कॉलम पकड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा वाला उसके साइड को पकड़ेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएंगे सीधा। श्वास खाली करेंगे। इस क्रम में केवल मैंने इसको घुमाया है, ट्विस्ट किया है, बेंड नहीं कर रहा हूं, मैं झुक नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं केवल इसको ट्विस्ट कर रहा हूं इस तरह से और फिर श्वास भरते हुए वापस आ गए। और अब दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड को राइट साइड यहाँ आर्म पर रखे और राइट हैंड को ऊपर रखे। श्वास खाली किया, धीरे से ट्विस्ट किया, और इससे ना कंधों में भी इधर अब आप रेगुलर करते हैं। ठीक है, तो फिर से राइट में और फिर इस तरह।
बहुत अच्छा अभ्यास है आपके हार्ट के लिए, लीवर के लिए, पैनक्रियास के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, हिप जॉइंट के लिए तो है ही है ना। तो ये इस तरह से आपको 5-7 राउंड करना है। अब हम आते हैं घुटने पर, ठीक है। घुटने पर बोलो, नीचे नहीं जा रहा हूँ, बैठ के घुटने का एक्सरसाइज करना है, ठीक है। इसका अभ्यास करना है। क्या है, आपको इसके लिए बिल्कुल पीछे जाके सट जाना है चेयर के बैक पे, लेकिन बैक अभी भी स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और इसे उठाना है ऊपर, हो जाता है, आपको नजर आएगा अच्छे से। ये सीधे बैठ के इंटरलॉक करना है अंदर ले जाके उंगलियों को, ठीक है, ऐसे। और अपने पास जितना ऊपर उठा सकते हैं थाई को, उतना ऊपर उठाना है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे इसे ऊपर की ओर लेके आना है, और ये जो उंगलियां हैं अपनी ओर खींच लेना है, पैर की उंगलियों को। तो पिंडलियों में थोड़ा खिंचाव होगा, टाइट हो जाएंगे ये, है ना। और फिर श्वास खाली करते हुए नीचे, फिर श्वास भरेंगे ऊपर, एकदम सीधे बैठ के। इसको अपनी तरफ रखना है जितना पॉसिबल है आपके लिए। Inhale up and exhale down. Inhale up, exhale down. आप करते रहिए, अभी 3 राउंड और कीजिए। शरीर में स्ट्रेस इन्हीं गिनती के 4-5 जगहों पर रहता है, गर्दन, कंधे, कमर और घुटने। जो मानसिक स्ट्रेस है वो भी, यदि ये इनको आप स्वस्थ रखेंगे तो मानसिक स्ट्रेस भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस क्या है, हम अपने ही विचारों में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, है ना। देखिए, समस्या कोई सी भी है, कैसी भी समस्या है, क्या हम समस्या के बारे में सोचेंगे तो समाधान मिलेगा, या हमें समाधान के बारे में सोचना पड़ेगा? समाधान चाहिए तो समाधान के बारे में सोचेंगे ना। आप समस्या के बारे में ही सोचते रहेंगे तो कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे समाधान मिलेगा? समाधान के बारे में सोचना पड़ेगा। समाधान ये है, समाधान का ये पहला स्टेप है कि शरीर को आप स्वस्थ करें, और ये आपकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना, है। और ये आप आराम से चेयर पे बैठे कर सकते हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। योग करने के लिए लोग कितना परेशान होते हैं, मैट लाओ, पूरा तैयारी करो, फिर ऐसा कुछ नहीं, बहुत सरल है, आराम से कर सकते हैं आप, हर व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। अभी राइट के साथ हमने किया, वही लेफ्ट के साथ करना है। इसको पूरा करने के बाद आपको ब्रीदिंग सिखाऊंगा, तो आप इसे अच्छे से इंटरलॉक कर लें और ऐसे होल्ड कर लें, और श्वास भरते हुए सीधा सीधा ऊपर उठाएं, और खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। श्वास भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसा 5-7 बार करना है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम आपको सिखाएंगे ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, और मतलब कई अभ्यास के बराबर का रिजल्ट अकेले दे देता है। और इसमें भी 4 स्टेप्स हैं, तो अकेले तो हुआ नहीं है भी, ठीक है। कैसे करना है इसको सीख लेते हैं। पहला स्टेप है चिन मुद्रा, ठीक है। बाकी की 3 उंगलियां जो है एक साथ रहेंगे, गैप नहीं रखेंगे हम इसमें, एक साथ रखेंगे, और रिस्ट जॉइंट को रख लेंगे घुटने पर। और हमें पहला क्या करना है, श्वास भरेंगे, पेट जो है फैलेगा, और जब श्वास खाली करेंगे तो पेट को अंदर लेके जाएंगे, ऐसा। अंदर की तरफ चला गया, है ना। अब जब श्वास भरेंगे
ऐसा फैलेगा। फिर खाली करेंगे अंदर, राइट। तो इस तरह से कीजिए, आराम आराम श्वास भरें, कीजिए। ये 5 बार हम करेंगे। चलिए फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट राउंड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाहर, धीरे धीरे खाली करेंगे। अब सेकेंड, इनहेल आउट, एक्सहेल बैक, श्वास भरते हुए बाहर और खाली करते हुए पीछे अंदर। और लास्ट राउंड, श्वास भरते हुए बाहर, खाली करते हुए अंदर। बहुत अच्छा। अब इसके बाद जो है हम करेंगे नहीं, वो है थोरैसिक ब्रीदिंग। थोरैसिक ब्रीदिंग में क्या है, लंग्स को पूरी तरह से एक्सपैंड करना है जितना मैक्सिमम कर सकते। एक हेल्दी लंग मिनिमम एक्सपेंशन जो उसका है, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन जो न्यूनतम प्रसार जिसको कहते हैं, वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इट शुड एक्सपैंड। इफ इट इज एक्सपैंडिंग टू 5 सेंटीमीटर, we can expect or we can say that okay fine, now lungs are very healthy, okay। लेकिन घबराने की बात नहीं है। यदि 5 की बजाय 4 होता है, 3 होता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि खराब हो गया है। सिर्फ अंतर इतना है कि हम प्रतिदिन उसको अभ्यास नहीं दे रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं दे रहे हैं, इसलिए ऐसा है। यदि हम अभ्यास देना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो फिर ठीक हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, वो बिल्कुल और बढ़िया हो जाएगा, है ना। सिंपल है। तो अभी इसके लिए मुद्रा बदल जाएगी थोड़ी सी। पहली मुद्रा तो ये थी, वो ऐसे ही रहेगी। बाकी की 3 उंगलियों को अंदर रोल कर लेंगे। अब इसका नाम चिन्मय मुद्रा है। अब इसको रिस्ट जॉइंट को यहाँ रख देंगे घुटने पर, आराम से बैठ जाएंगे तन के, और चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे श्वास के साथ, ऐसा। मैक्सिमम एक्सपैंड आराम आराम से करेंगे। आप इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड, इनहेल, एक्सहेल। फिर सेकेंड राउंड, श्वास भरें, अब खाली करें। और फिर खाली करें धीरे धीरे। फिर श्वास भरें, 5वां राउंड, 4था राउंड। अब लास्ट, श्वास भरें, बहुत बढ़िया। अब इसका तीसरा स्टेप, उसके लिए मुद्रा बदल जाएगी। थंब को अंदर ले लेंगे, बाकी 4 उंगलियां ऊपर, रिस्ट जॉइंट को घुटने पर रखें। और इस बार बहुत इजी है ये, है ना। श्वास भरेंगे और कंधे के जोड़ों को ऊपर उठाएं, कैसे, श्वास भरते हुए इस तरह। पूरा ऊपर उठाइए श्वास भरते हुए जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, और खाली करते हुए धीरे धीरे। फिर श्वास भरेंगे, फिर 2 राउंड और। फिर धीरे धीरे
दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेंगे। अपने इष्ट देव को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, अपने से बड़ों को प्रणाम, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और लंबे गहरी श्वास के साथ शांति पाठ करेंगे। 1 बार ओम और 3 बार शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास लें। ओम शांति शांति। दोनों हथेलियों को गर्म करेंगे आपस में घर्षण करके, और फिर आंखों के ऊपर कप करेंगे। आंख की पुतलियों को छुएंगे नहीं, आईलिड्स को छुएंगे नहीं, केवल कप करेंगे इसके ऊपर। और थोड़ी देर बाद पूरे चेहरे पर घुमाएंगे और फिर पूरे शरीर और पलकों को झपकाते हुए घुमाएंगे। हरिओम। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप समय शुभ और मंगलमय हो। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कंफ्यूजन हो, या कोई प्रैक्टिस समझ में नहीं आई हो, या कोई और बातें आप शेयर करना चाहते हैं? मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि खाने के कितनी देर बाद करना चाहिए या खाली पेट करना चाहिए? खाली पेट करें तो ज्यादा बढ़िया है। खाने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे के गैप के बाद करना है। ओके, थैंक यू। जी बताएं। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। हरिओम। हरिओम। आचार्य जी, अभी लंबी सांस खींचने पे मेरे रिब्स अंदर चिपकते हुए लगे। आज उल्टा हो रहा है ना, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग उल्टा हो रहा है। तो उसका एक सिंपल तरीका है। जी मैं इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जो अभी हम कर रहे थे ना ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, कि श्वास लिया पेट बाहर आ रहा है। तो सपोज कि आप बेड पर लेटे हुए हैं, ठीक है, और अब जब श्वास लेंगे तो पेट बैलून की तरह ऊपर की ओर फैलेगा, और जब श्वास खाली करेंगे तो नीचे जाएगा। और ये सोते समय बहुत आसानी से होता है। और दोनों पैर फोल्ड कर लें तो और बढ़िया से होता है। रत्ना अग्रवाल जी टू एवरीवन। लेकिन फिर दम भरने लग गया ना, सांस छोड़ने पे दम भरने लग गया फिर। नहीं, वो तब होता है जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा श्वास खींच रहे हैं। When we are breathing more than the capacity, है ना। जैसे एक चपाती हमारी कैपेसिटी है कि हम खा सकते हैं, है ना। और यदि एक चपाती से ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? सफोकेट करेंगे ना, ऐसे लगेगा अरे ये तो बहुत हैवी हो गया, लोड हो गया। जैसे जिस दिन आपको इडली बनाते हैं, सॉफ्ट बन गया, तो आपको लगता है एक और दवाई लिया जाए। पता चले 2 इडली की जगह 3 ले लिया, तो तीसरा वाला फिर बाकी 2 का जो एंजॉयमेंट था खत्म कर देता है ना। तो हमें श्वास आराम से लेना है, खूब ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं, अब कोरोना खत्म हो गया, सिलेंडर की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल हम आराम से धीरे धीरे ऐसा। अब क्या होता है, श्वास कैसे लेते हैं, सफोकेशन क्यों होता है, वो ऐसे खींचते हैं। तो गड़बड़ है, इतनी तेजी से क्यों खींचना है? आराम से, कहीं नहीं भाग रहा श्वास, आराम से। और फिर छोड़ना शुरू कर देंगे। ज्यादा खींच लेते हैं तो दिक्कत होती है, तो ज्यादा श्वास नहीं खींचना है, आराम से करना है। थोड़ा श्वास लेना है, जितना हमारी जितनी क्षमता है उतनी बस। और लेट के इसको करेंगे जब आप बेड पे, तो ठीक हो जाएगा। आप 10-15 दिन करें और फिर आप मुझे बताएं, तो आसानी से हो जाएगा। जी। ये आचार्य जी सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए? जी यदि करते हैं तो बहुत बढ़िया है सर। सुबह अगर बैठ के कर लें और रात को लेट के कर लें, सुबह बैठ के कर लें। हाँ ऐसा कर सकते हैं। यदि सपोज आप डिनर 7-8 बजे के आसपास कर लेते हैं जी, और आप सोते हैं 9 बजे के आसपास, 2 घंटे का गैप है आपके डिनर और सोने के बीच में, तो सोते हुए आप ये डीप ब्रीदिंग तो कर ही सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। ओके, ये तीनों मुद्राएं बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छा लगा ये मुद्राएं को। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू आचार्य जी, बहुत अच्छा था। हमारे कंधे में बहुत दर्द था, लेकिन वेलकम। थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि ऑल शोल्डर है। देखिए शोल्डर के लिए ना जी 2 प्रैक्टिस है। 2 प्रैक्टिस है।
एक तो ये हमने ऐसा गोल गोल घुमाया, कई बार डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि सर्वाइकल है तो नहीं करना है, ऐसी हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिटन में दे सकता हूँ। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और एक नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो जी, आपको जी। इसकी चिंता नहीं करनी है। और मैं यहाँ जीवाग्राम में एज अ डिपार्टमेंट हेड हूँ योगा थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, जी जी तो उसकी चिंता नहीं करनी है। यदि मैं बता रहा हूँ तो ये फर्म कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बहुत सिंपल है, एक तो ये रोटेशन हमने जो किया ये हाँ। करना है, बहुत धीरे धीरे एकदम प्यार से करना है। 10 राउंड के बजाय 1 राउंड करें, लेकिन धीरे करें, जी। ठीक है। और दूसरा जो सबसे अच्छा वाला है आपके लिए वो ये था, ये आदि मुद्रा, यानी कि थंब को अंदर रखना है, बाकी 4 उंगलियां ऊपर से रहेंगी और हम श्वास भरते हुए कंधों को ऐसा ऊपर उठाएंगे, है ना। ये तो फ्रोजन शोल्डर में भी होगा। और धीरे धीरे देखेंगे आपके 10 दिन में कंधे फ्री हो गए, ऐसा श्वास भरा, ऊपर उठाया और छोड़ा, नीचे ले आए। 10 दिन में ये धीरे धीरे ढीला होने लग जाएगा, जी, क्योंकि इसमें नहीं उसमें हुआ मूवमेंट शुरू हो गया ना। जी, इसको करने से दर्द नहीं हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये। जी जी, थैंक ये यू अच्छी बात है। सो मच, थैंक यू। आचार्य जी, No welcome, आचार्य madam, no welcome। जी, डीप ब्रीदिंग के समय क्या सांस थोड़ी देर रोकनी भी है या एकदम रिलीज करनी है? रोकनी नहीं है मैडम, हमें नहीं केवल श्वास लेना है डीप और धीरे धीरे खाली करना है। देखिए मैं रोकना इसलिए अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि श्वास किस कंडीशन में रोकते हैं। अब जैसे आप में से कई लोग होंगे जिनकी बीपी हाई होगी, जिनकी बीपी लो होगी, है ना, तो ये थोड़ा कहना ऐसे मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बेहतर है कि हम केवल श्वास को लें और धीरे धीरे खाली कर दें, फिर लें और फिर खाली करें, ये करना है हमें। कितने सेकंड इनहेल करें, कितने सेकंड एक्सहेल करें? ये नहीं, ये पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक श्वास लेने में सक्षम हैं। सिर्फ इसमें एक बेसिक सिद्धांत है इसका कि यदि आप सपोज 5 सेकंड श्वास ले रहे हैं तो छोड़ने में कम से कम 7 से 10 सेकंड का समय लगे, यानी कि जितना समय लेने में लगता है छोड़ने में लगभग उससे 1.5 से 2 गुना समय लगना चाहिए। तो अब सपोज आपकी ब्रीदिंग जो है 10 सेकंड तक है इनहेल की, तो आप 15 सेकंड 20 सेकंड छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उतने देर तक छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। यदि सपोज आप कितने लेते ही मिनट हैं कर 5 सेकंड सकते के हैं? लिए तो आप 7-10 कितने मिनट का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसे 10 से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में आप इसे 3 से 5 मिनट तक करें और जब महीने 2 महीने 3 महीने आप इसका अभ्यास कर लें तो बढ़ा करके फिर 10 मिनट और फिर 15 मिनट, इतना काफी होगा। थैंक यू। यू वेलकम। आचार्य जी, आपने बताया और डिफरेंट मुद्रा, और किसी टाइम मुद्रा जी। भूल जाए और फिर भी योगा ये करना हाँ, चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। जब मुद्रा भूल जाए तो उसका एक बढ़िया सॉल्यूशन है। आपने बढ़िया प्रश्न पूछा, ये कई लोगों की समस्याएं इस पे सुलझ गई, क्योंकि मुद्राएं तो पक्का है कि भूलेंगे। तो ये पाम्स को खुला रखना है, हथेलियों को, और जब सारी मुद्राएं आप भूल जाएं तो घुटने पर खुले हथेली को ऐसे रख दें और जितने अभ्यास हैं इससे करें, क्योंकि ये महामुद्रा है। खुले हथेली को घुटने पर रख के अभ्यास करना ये महामुद्रा है। तो ये भी एक मुद्रा ही है, लेकिन ये आसान है, याद रहेगा कि जैसे ये भूल गए, ये भूल गए, ये भूल गए, तो ऐसा खुला करके रख देना है और सारे अभ्यास उसी मुद्रा में कर लेने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया। थैंक यू, यू आर वेलकम। Any more questions, anyone? हाँ रितु, एक बात। हाँ जी सविता जी। आचार्य जी, मुझे वैक्सीनेशन लेके 4 महीने हो गए। हाँ जी। पेन कभी कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है यहाँ में। कल से तो ये हाथ सुन्न होने लग गया है। हाँ, ओके। अब ये इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए अभी हमने एक अभ्यास बताया था, ऐसा ना, ये हाँ है ना, जी, ऐसा। तो मान के चलिए कि हाँ, सपोज यदि मान के चलिए कि यदि आप यहाँ रख के कर रही हैं और इसमें दर्द होने लगता है, नहीं कर पाते हैं, तो इसको ढीला रखना है, ऐसे चेयर के आर्म पर रख देना है। अब यहाँ करना है, ये चेयर के आर्म पर रख के करेंगे, है ना।
तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। लेकिन अभ्यास तो यही है। एक अभ्यास इसमें और है, आप ऐसा मुट्ठी बंद करें, पूरा श्वास खाली करके टाइट एकदम, और फिर श्वास भर के इसको सीधा कर लें और सारी उंगलियों को बिल्कुल टाइट रखना है ना, छोड़ के बंद करना है और श्वास भर के सीधा करना है। ऐसा 10 से 15 बार करना है, ठीक है। तो ये इसमें स्ट्रेंथ डेवलप करेगा और ये समस्या दूर हो जाएगी। आप करें रेगुलर और फिर मुझे बताएं थोड़े समय बाद। जी जरूर, धन्यवाद। आचार्य जी, मुद्राओं को एक बार रिपीट कर दें। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, पहला अभ्यास चिन मुद्रा के साथ करना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये जो पेट के लिए हमने किया, श्वास भरते हुए फैलेगा, खाली करते हुए अंदर जाएगा, तो ये चिन मुद्रा के साथ है। दूसरी मुद्रा चिन्मय मुद्रा। चिन मुद्रा में ही बाकी 3 उंगलियां जो हैं उसको रोल कर लेंगे, ये बन गया चिन्मय मुद्रा, ठीक है। और ये है थोरैसिक ब्रीदिंग के लिए। श्वास भरेंगे और चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे और ढीला छोड़ेंगे, ऐसा। तो उसके बाद फिर है, थंब को अंदर ले लेंगे इधर हथेली के अंदर और बाकी 4 उंगलियां ऊपर से, और ये है आदि मुद्रा कहते हैं इसे। ये है क्लेविकुलर ब्रीदिंग के लिए। क्लेविकुलर मसल को श्वास भरते हुए ऊपर लेके चले जाएंगे और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे, ऐसा। ये मुद्राएं थी। आचार्य जी, ब्लड प्रेशर के लिए भी कुछ है? हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये जो हमने ये किया ना थोरैसिक ब्रीदिंग, यदि आप ये रेगुलर करती हैं 7 टाइम्स 10 टाइम्स एवरी डे, मतलब ये पूरा ब्रीदिंग का सिस्टम तीनों करती हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको सिर्फ लग रहा है कि केवल उसी पर फोकस करना है, तो आप थोरैसिक ब्रीदिंग यानी कि इस वाले मुद्रा के साथ चेस्ट को एक्सपैंड करने वाला जो था, ये है मुद्रा। तो चिन मुद्रा में लगाइए पहले, हाँ, और बाकी 3 उंगलियों को अंदर ले लीजिए, ठीक है, ऐसे जी। और अब श्वास भर के फिर पूरा फैलने देना है और फिर धीरे धीरे श्वास खाली करना है। तो ये यदि आप करते हैं 7 से 10 बार प्रतिदिन, तो ये भी काफी लाभ देगा आपको। और वैसे तीनों करते हैं तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू, शुक्रिया। आचार्य जी, लास्ट वाली मुद्रा, श्वास वाला जो कंधों वाला है, उसकी मुद्रा एक बार और बता दीजिए। ये थंब को अंदर ले लीजिए ऐसा, और बाकी 4 उंगलियां ऊपर से, और श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठा लीजिए, और ये ऊपर की तरफ फेस करेगा ना, घुटने पर जब रखेंगे आप इसको। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और खाली करते हुए नीचे लेके आएंगे। शुक्रिया। क्लियर है आचार्य जी? आचार्य जी, ये मेरे राइट साइड में जो है ना L4 L5 जो है डिजेनरेट हो गया, ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जो बेसिक ट्विस्ट अभी हम लोगों ने किया वो कर सकते हैं, और ज्यादा कोई जर्की मूवमेंट नहीं करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, आगे नहीं झुकना है, और कुछ हेवी वेट नहीं उठाना है। हेवी वेट उठाना आपके लिए उस दर्द को बढ़ा देगा। तो ये ट्विस्टिंग है, बेसिक ट्विस्टिंग है बहुत। इसमें स्पाइन को सीधा रखते हुए केवल ट्विस्ट करना है, ऐसा झुकना नहीं है, केवल ट्विस्ट करना है और पीछे की तरफ देखना है, श्वास खाली करके वापस श्वास भरते हुए आएंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। तो इसमें काफी लाभ देगा ये, है ना। और ब्रीदिंग बहुत हेल्प करेगा। ये ब्रीदिंग बेसिकली आपके मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को ठीक करेगा, डाइजेशन जैसे और बढ़िया होता चला जाएगा, कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा। तो वो बैक पेन और रिलीव होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आचार्य जी, गर्दन दर्द के लिए और दूसरा क्या है? सर 2 काफी हैं। यदि आप इसे रेगुलर करते हैं तो बहुत लाभ मिलने वाला है। यदि आप सिर्फ ये रोटेशन करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद ये मूवमेंट है जो इतना करते हैं आप, तो इसमें बहुत लाभ मिलेगा। ये 3 प्रैक्टिस हो गए ना, क्लॉकवाइज सीधा 5-7 बार घुमाना है, फिर 5-7 बार उल्टा घुमाना है गर्दन को, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर उठाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है। ये करने में आपको कम से कम 7 से 10 मिनट का समय लगेगा यदि आप धीरे धीरे करेंगे, है ना। तो इतना पर्याप्त होगा। यदि
आप 15-20 दिन लगातार अभ्यास करें, लाभ नहीं मिलता है इन केस, हालांकि ऐसा होगा नहीं, आप नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं वापस कि कैसा रहा आपका, है ना, फिर हम देख सकते हैं कि आगे क्या करना है। नॉर्मल पेन है तो ठीक हो जाएगा, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का लाइक डिस्क डिजनरेशन का इशू है, तो वो हम रिपोर्ट देख के फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आगे और क्या करना है। नॉर्मल पेन मोस्टली, नॉर्मल पेन तो चला जाएगा। योगा जब करते हैं खास करके सर्वांगासन, तो सर्वांगासन करने में थोड़ा दर्द हो गया था, उसी का है। तो आप सर्वांगासन करते ही क्यों हैं? नहीं, आज का छोड़ दिए, आजकल नहीं कर रहे हैं। जब गर्दन में दर्द हो गया तो नहीं किए। अभी अब सर्वांगासन नहीं करना है, नॉर्मल सेतुबंधासन, मरकट आसन, है ना, बाकी ऐसे आसन करने हैं, वो करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्वांगासन एडवाइजेबल नहीं है इस कंडीशन। ठीक। आचार्य जी कुछ सिकाई बता कर सकते हैं क्या, गरम ठंडा? आचार्य जी ये गोमुख आसन क्या होता है? गोमुख आसन? हाँ जी, हाँ जी, गोमुख आसन, अरे जी, ये एक सिटिंग प्रैक्टिस है और ये थोड़ा हार्ड होता है, मैं करके दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी उम्र कितनी है? 76। एडवाइजेबल थोड़ा नहीं होगा। घुटने कैसे हैं आपके? ठीक हैं घुटने? हाँ, घुटने बिल्कुल ठीक है। लोअर बैक? मैं बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं करके दिखा देता हूँ, ये आपके ऊपर है। यदि आपको लगता है कि गोमुख आसन आपके लिए एडवाइजेबल है, मेरे एंड से एडवाइजेबल नहीं है एज पर द एज, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि आप बिल्कुल फिट हैं, स्पाइन में कोई दर्द नहीं है, लोअर बैक में दर्द नहीं है, कंधे में दर्द नहीं है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है सर। तो मैं दिखा देता हूँ करके। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहुत सिंपल है, मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ से आपको मैं दिख रहा हूँ इतने? हाँ, बिल्कुल दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा सर। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है ये। आपको एक पैर जो है फोल्ड करके ये अंदर रखना है और दूसरा इसके ऊपर। ठीक, ठीक है, ठीक है। ये इसका आगे का, ये इसका फ्रंट है। अब इसका बैक दिखा देता हूं मैं जी। उसी पोस्चर में मैं बैठा हूं जो दिखाया अभी आपको जी, और लंबी गहरी श्वास के साथ जी, मेरा राइट नी ऊपर है तो राइट हैंड ही ऊपर गया और लेफ्ट हैंड नीचे से ऐसा गया और इंटरलॉक हो गया फिंगर्स आपस में, और बैक बिल्कुल सीधी रहेगी, सामने की तरफ देखूंगा मैं। तो ये गौमुख आसन है, ठीक है। इसमें ब्रीदिंग बिल्कुल सामान्य होगी, और जब आप इसका दूसरा तरफ से करेंगे तो सेम पोस्चर होगा, लेफ्ट घुटना ऊपर चला जाएगा तो पीछे से लेफ्ट हैंड फिर ऊपर जाएगा, ये इसमें होता है। मुझे किसी ने एपिटाइट बढ़ाने के लिए आसन सेलेक्ट किया है। नहीं नहीं, आपको एपेटाइट बढ़ाने के लिए इतना तगड़ा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ये करें ना, आप ये करें जी, ये वही काम कर रहा है शरीर में। ट्विस्ट ही तो पैदा करना है, इसको ट्विस्ट करना है। इफ यू ब्रिंग दैट ट्विस्ट टू द इंटेस्टाइनल एरिया एंड द एब्डोमिनल मसल्स, इट विल हेल्प यू। थैंक यू, थैंक यू सर। यू वेलकम सर, यू वेलकम। हरी जी, ये मुझे टिनिटस है, टिनिटस, कानों में आवाज आती है, इसके लिए कोई वो है योग? टिनाइटस के लिए भ्रामरी प्राणायाम है। अच्छा, ठीक है। और वैसे मुझे और आपकी हिस्ट्री या मेडिकल ऐसा कुछ होगा तो वो पूरा रिपोर्ट देखना पड़ेगा। वैसे केवल टिनाइटस है तो टिनाइटस के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो कि दोनों हथेलियों को ऐसा चिन्ह मुद्रा में लगा के रख लेते हैं, जीभ को ऊपर के तालू में लगाते हैं और आंखें बंद रहती हैं और हम भौरे की तरह गुनगुनाते हैं श्वास भरने के बाद, इस तरह से। स्वामी जी, मुझे रात को थाइस में पेन होती है, इसका कुछ इलाज बता सकते हैं? माफी चाहूंगा सर, मैं बीच में था, आप फिर से बताएं क्या प्रश्न था आपका? ये रात को मुझे अभी टिनाइटिस के लिए एक मिनट सर, प्लीज।
टेनाइटिस के लिए जिनको मैं बता रहा था, आप ये अभ्यास समझ पाए? हाँ जी, समझ गया। एक बार दोबारा बता। समझ गया। आपने धन्यवाद। पूरा शायद कर नहीं पाए थे आचार्य जी, आप फिर से बता दीजिए। बीच में मैं समझ गया। मैं समझ गया। जेंटलमैन, हाँ जी, एक एक करके क्वेश्चन पूछें तो बेटर रहेगा। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, ये चिन्ह मुद्रा में रखना है, बाकी की 3 उंगलियां साथ में, और जीभ के अगले हिस्से को ऊपर के तालू में लगाना है, अंदर जितना पीछे ले जाके लगा सकते हैं, और लिप्स लॉक रखना है नॉर्मल, आईज क्लोज रहेंगी, चेहरा पर मुस्कान रहेगा, और श्वास भरेंगे और उसके साथ भौरे की तरह आवाज गुनगुनानी है हमें। धन्यवाद। तो ये आप 11 to 27 टाइम्स तक कर सकते हैं। 11 बार भी आप करेंगे शुरुआत के लिए तो बहुत है। आपको अच्छा कि जनरली ये कान में हाथ लगा के ये ऐसे बताते हैं? हाँ, वो जो मैंने मुद्राएं बताई, 2 मुद्राओं के साथ बताया, और उस मुद्रा का नाम सन्मुखी मुद्रा है, और वो जनरल प्रैक्टिस के बजाय साधना के लिए ज्यादा उपयुक्त है जी। तो हम जनरल प्रैक्टिस में लोगों को नहीं बताते वो, क्योंकि उसमें फिंगर्स की पोजीशनिंग आमतौर पर लोग गलत करते हैं, जिसकी वजह से फायदा के बजाय नुकसान ज्यादा होता है उनको। अच्छा, वो अलग बता देंगे, वो भी एक बार बता दीजिए। मुद्रा है, अभ्यास वही है, रिकमेंड करता हूँ, वो मैंने सिखा दिया देखने के लिए। अभी जैसे गोमुख आसन सर को मैंने बताया, लेकिन मैंने रेकमेंड नहीं किया है, वो मेरे एंड से उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप समझ रहे हैं ना जी। वो यदि करते हैं तो उनका पर्सनल रिस्क है, yes. मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि उनकी एज के हिसाब से वो सुटेबल नहीं है। अब किसने बताया है, क्या सोच के बताया है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये हम रेकमेंड नहीं करते हैं जनरल प्रैक्टिस के लिए, साधना के लिए है मुद्रा। सन्मुखी मुद्रा में हम इसको थंब को ईयर टिप पे लेके जाते हैं, यहाँ ये जो है छोटा वाला, इसको ऊपर से हम जस्ट सिंपल प्रेस करते हैं नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद पहला इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर जाता है, दूसरा इसके नीचे, तीसरा नॉस्ट्रिल्स के साइड में, और जो है इसके बाद वाला जो है सबसे छोटा, वो साइड में करते हुए अब आमतौर पर गलती क्या होती है, लोग सीधा उंगली उठाते हैं यहाँ और लाके आंख पर लगा देते हैं और इसको यहाँ बंद कर लेते हैं और गुनगुनाते हैं, और जब आंखें खोलते हैं तो उनको सब कुछ ब्लर दिखता है ना जी जी। तो आप जो है लाभ से ज्यादा नुकसान के हिसाब किताब में चले जाएंगे, तो इसलिए आप इसको करें। और ये जी अभी तक यही करते हुए बिल्कुल ये जो मैं बता रहा हूँ, और यहाँ इसका बेसिक साइंस है, इसका बेसिक साइंस ये है कि जो जब हम जीभ के इस अग्रभाग को ऊपर के तालू में लगाते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का बेस को टच करता है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द किंग ऑफ ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी दैट हेल्प्स टू बैलेंस द हार्मोनल सिस्टम इन अ प्रॉपर वे। ये है इसका बेसिक साइंस, वैसे बहुत लंबा है तो इतना आप करें। ये जो मैंने बताया मेथड वो बेस्ट है, एक्सपेरिमेंटेड है, एंड वी हैव सीन द रिजल्ट, उस पे आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुई हुई हैं, इसका मैं नहीं कह सकता हूँ। सो आचार्य जी थैंक यू सो मच। मैडम एक सवाल होता मेरा, मैं देख रही हूँ बहुत सारे पर्सनलाइज्ड सारे, एंड for that I think all of you should kind of go to them in a different manner so that they can understand your whole problem. But last question पूछ लीजिए आप पवन जी। मैं ये कह रहा था, मुझे राइट आई के अंदर थोड़ा ब्लड हो रहा है और ग्लोकोमा है। ओके। और जो आँख का जो पर्दा है थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो जी
डॉक्टर्स ने तो बोला ऑपरेशन कर सकते हैं, आप सजेस्ट किया है, आप कुछ बता सकते हैं एक्सरसाइज? नहीं, जब एक लिमिट होती है किसी भी ऑर्गन के लिए, ठीक है ना, जब वो उस सिचुएशन में पहुंच जाता है जहां उसको शल्य चिकित्सा की जरूरत है, ऑपरेशन की जरूरत है, तो उसको रिहेबिलिटेट करना मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है कि अपनी जो उसके स्ट्रेंथ है वो खो चुका है ना, और वो भी डिफेक्ट के साथ। यदि उसमें सिर्फ वीकनेस होती तो हम रिकवर कर सकते हैं, हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। कॉर्निया वीकनेस है, कॉर्निया वीकनेस जी, वो तो कुछ अभ्यास के जरिए हम थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसको, लेकिन ग्लूकोमा का क्या करेंगे? वो तो ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। वो हो चुका है, वो हो चुका है। हाँ, तो फिर अब क्या समस्या है उसमें? अब थोड़ा ब्लडनेस है और वीकनेस है, ये तो उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि ऑपरेट करेंगे। हाँ, यस। अच्छा, तो देखिए इसके लिए अभ्यास होता है, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक है और अंडर द गाइडेंस ही कर सकते हैं। त्राटक करके एक अभ्यास होता है हमारा नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए, और 6 क्रियाओं में से एक है वो। इंडोर प्रैक्टिस है, कैंडल मेडिटेशन के नाम से लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर किया है, बट वो मेडिटेशन का अभ्यास नहीं है, वो धारणा का अभ्यास है, कंसंट्रेशन का अभ्यास है। बहुत स्ट्रांग होता है, बिना गाइडेंस के आप उसको अटेम्प्ट ना करें यूट्यूब से देख के, लेकिन उससे कुछ लाभ मिल सकता है यदि हम अंडर द गाइडेंस करें, तो ऐसा कह सकते हैं। आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए आचार्य जी, so that we can... सर आपको कनेक्ट करना है जी, मोहा के थ्रू आप कनेक्ट करें, दे विल गाइड यू टू कम टू दिवाग्राम एंड आई एम देयर। धन्यवाद बहुत बहुत। So thank you so much Acharya ji for such a wonderful session. आपने बहुत ही patiently सारे questions लिए, चाहे वो personalized questions है, तो thank you so much for doing that. And always a pleasure. Of course आपने जितनी भी exercises बताई हैं बहुत simple है, and बैठे बैठे हम लोग कर सकते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में जैसे आपने कहा एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली जो पार्ट हमें ज्यादा परेशान करते हैं, जो कंधे होते हैं, जो नेक होता है, बैक होती है, घुटने होते हैं, सो यही मेन चीजें हैं जो विच स्टार्ट बॉदरिंग अ पर्सन। एंड आजकल तो ये सब प्रॉब्लम्स, चाहे वो यंगर जनरेशन को है, चाहे वो एल्डर जनरेशन को, सबको ही ये प्रॉब्लम्स हो रही है। सो आपने बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस बताई हैं, जो मतलब हम लोग काम भी कर रहे हो तो बीच में 2 मिनट मुड़ के अपने आप को 10 मिनट देकर वी कैन डू दीज एक्सरसाइजेस। सो एंड आई थिंक हम लोग खुद बहुत रिलैक्स्ड एंड काम महसूस करेंगे ये सब करने के बाद। सो थैंक यू सो मच एंड always welcome. It has been really a great pleasure being here. Thank you so much. It's been wonderful having you, and definitely जीवा के साथ हमने बहुत सेशंस करे, and we look forward to many more. And yes, जिनको भी problems हैं, कुछ हैं, of course we will direct them towards you, as in whoever wants to complete, जो हमने पहले भी करा है, so we will continue doing most that. Welcome. Okay? Sure, most welcome. So thank you so much Acharya ji, and thank you so much. Right, thank you so much ji.